introduction of Amazon EC2. EC2 क्या है? In simple form, it is Elastic Cloud Compute Cloud, जो कि AWS का मोस्ट पॉपुलर AWS सर्विस है, ठीक है. And the important part, once you create a one EC2 machine, it's considered to be infrastructure. You created a infrastructure as a service. Why? क्योंकि EC2 इंस्टेंस में आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हो और उस वर्चुअल मशीन पे आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो. अदर यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट और अदर यू आर क्रिएटिंग अ एप्लीकेशन. तो वो जो भी आपको बनाना है उसके लिए आपको एक वर्चुअल मशीन लेना पड़ेगी और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल करना पड़ेगा. इसीलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहा जाता है और ये एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कंसिडर की जाती है, ठीक है. So the key capabilities क्या है EC2 की? As we already told, it's once you create a EC2 machine, it means you have created a one virtual machine. उस वर्चुअल मशीन में आपको स्टोरेज लगता है, उसके लिए आप एक एक्सटर्नल सर्विसेज EBS के थ्रू वर्चुअल ड्राइव ऐड करते हो. इसके अलावा उस मशीन के अंदर आपको लोड मैनेज करना पड़ता है. दैट फॉर यू कैन यूज द EBS इलास्टिक लोड बैलेंसिंग. स्केलिंग होती है. These are the other services, those we are connected to the EC2 instances that we can understand in further lectures, but currently you can just understand that key capability we required for EC2. Okay. So for the first, EC2 is virtual machine. You can add a storage in the form of EBS or a hard storage. We can manage the load balancing. We use it in your EC2 for the application. Managing the application traffic. We can use scaling service AGS for a scaling perspective. Okay, so that are the EC2 key capabilities and a concept that is creating virtual machine and virtual drives and EBS. Now, why EC2 matters? As I already told, it's a infrastructure as a service. जब आप एक EC2 मशीन बनाते हो तो आप AWS के ऊपर अपना एक फंडामेंटल क्लाउड वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है. यू कैन गो ऑल द सर्विसेज बाय द योर वर्चुअल मशीन्स ओनली, ठीक है. IAM एक कॉन्सेप्ट था जो ग्लोबल सर्विस थी जिसको हमने बिफोर EC2 अंडरस्टैंड किया. उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हम इसके अंदर यूज करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली EC2 instance is involved. Okay. So the virtual suggestion AWS EC2 icon is simple cloud diagram. Okay, the fundamental of understanding how the cloud works. Okay, so that is the basic introduction of EC2. Okay, EC2 sizing and configuration. Most important, अब EC2 हम एक virtual machine बना रहे हैं. In virtual machine means what? We can creating one operating system infrastructure, है ना. तो EC2 मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 बेसिक ओएस को सपोर्ट करता है. दैट फर्स्ट इज कमांड बेस्ड लिनक्स, देन सेकंड विंडो दैट एवरीवन आर यूजिंग, थर्ड वन इज मैक ओएस, ठीक है. और इसके लिए हम अलग अलग कंप्यूट भी असाइन करते हैं. जैसे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सीपीयू असाइन करेंगे, उसके कोर्स असाइन करेंगे और उसको रैम भी असाइन करेंगे. इट्स अ कंप्यूट पावर दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर वर्चुअल मशीन, टू आवर EC2 इंस्टेंस, ठीक है. You can just understand EC2 instance is considered to be a virtual machine. Okay. इसके अलावा that I already told that we required a storage. Okay. So for creating EC2 instance, first we require the operating system. Second, we require the compute power like our CPU power or core power and RAM power. The third important factor we require the storage. तो स्टोरेज हम EC2 को बाय द नेटवर्क अटैच लाइक EBS और EFS के थ्रू किसी अदर डिस्क को हम हमारे EC2 इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क अटैच एंड इज कम टू द अदर सर्विसेज कॉल्ड EBS और EFS. या फिर हार्डवेयर बेस्ड जिसमें हम इंटरनली इंस्टेंस को इंटरनली स्टोर होता है. इट्स अ वर्चुअल हार्ड डिस्क
you consider to be a, ठीक है, we can understand it once we created our instance. उसके बाद में हम नेटवर्क कार्ड यूज करते हैं पब्लिक आईपीस फॉर कनेक्टिंग टू दैट EC2 इंस्टेंस, एंड also we can use a security groups for our EC2 instance security. It's work as a firewall between the end user and our instance, AWS instance, ठीक है। जब भी कोई कनेक्टिविटी करेगा हमारे इंस्टेंस को, उसको हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के फायरवॉल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, so that considered to be a security group that we can understand definitely on a next session. Okay, now you can just understand the basic concept what EC2 instance will be work further. Then the automation EC2 user data in bootstrapping. Okay, bootstrapping is important concept. जब हम कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम में एज अ डेटा कुछ इनपुट्स हम दे देते हैं, और वो इनपुट्स जो हम एट द टाइम ऑफ लॉन्च उसे देते हैं, तो ये जब भी बूट होगा, मान लो कि इंस्टेंस आज मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको कल बंद कर दिया, then the next day once I start the instance, that boot script will be run again and work same as a previously it did, ठीक है, कि जैसा एक मैसेज में आई कैन गिव द वन सिंपल एग्जांपल। समटाइम्स आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हो, some services automatically started once you start your laptop, like if you have a antivirus, that antivirus pop-up every time will be show in your desktop once you started your laptop. So इस तरीके की सर्विसेज हम देते हैं, और वो बूटिंग दैट कंसिडर टू बी है बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। तो हम हमारे इंस्टेंस मशीन में बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कंसिडर टू बी अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट। अब उड बूटस्ट्रैपिंग में हम कौन से स्क्रिप्ट असाइन कर सकते हैं? नॉर्मली अपडेट और सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट हम उसमें असाइन करते हैं, डाउनलोडिंग नेसेसरी फाइल्स हम उसमें असाइन कर सकते हैं, या फिर रनिंग अ कस्टम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम अलग अलग उसमें रनिंग कस्टम स्टार्टअप भी डाल सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, this script always be run once a first launch as a root user, ठीक है, अपने रूट यूजर से आप जब उसे फर्स्टली लॉन्च करते हो तभी ये स्टार्ट होता है, ठीक है। so that is automating and EC2 bootstrapping concept. Now as we see that over here we understand the sizing and configuration of EC2 instance. अब इस साइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से AWS ने EC2 इंस्टेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इज जनरल पर्पस कैटेगरी, देन कंप्यूट ऑप्टिमाइज कैटेगरी, देन मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज एंड आइसोलेटेड कंप्यूटिंग। क्या है? General purpose EC2 machines considered to be a combination of general combination of all elements like compute element, memory element and storage elements, है ना। जनरल पर्पस में वो एक सर्टेन अमाउंट में सीपीयू देगा आपको, एक सर्टेन अमाउंट में मेमोरी देगा, और वो सबको इन नॉर्मल मैनर में मैनेज करेगा। तो एक जनरल बिजनेस पर्पसेस के लिए जनरल पर्पस मशीन यूज होगी, और हमारे इस कंप्लीट फ्री टायर ट्रेनिंग में हम जनरल पर्पस मशीन ही यूज करेंगे। और ये जनरल पर्पस मशीन स्टार्टेड विद टी, ओके, एंड T3 that we can understand the machine names in a next slide in a web page, ठीक है। और दूसरा EC2 मशीन होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज से जिससे सिंपल समझ में आता है कि इस कंप्यूट ऑप्टिमाइज में हमें हाई परफॉर्मेंस मशीन चाहिए, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मशीन के लिए हमें हाई सीपीयूज चाहिए, हाई कोर्स चाहिए। तो जैसे कोई बिजनेसेस का है, मशीन लर्निंग किसी को सीखना है, या मशीन लर्निंग के कोई प्लेटफॉर्म है, या हाई लोडेड एप्लीकेशंस है, यू कैन कंसीडर टू बी IRCTC काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हाई कंप्यूट यूज होता है, हाई कोर्स यूज होते हैं, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। तो AWS categorize that kind of machine in a compute optimized machine
और उसी तरीके की मशीन जिसमें हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा उस तरीके की मशीन आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेमोरी ऑप्टिमाइज मशीन, मेमोरी कंसिडर टू बी अ रैम, इसके अंदर आपको रैम ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इस तरीके के मशीन नॉर्मली हाई परफॉर्मेंस डेटाबेसेस, एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस, हाई वर्कलोडिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हर EC2 मशीन में हमें ऑप्शन मिलता है दैट इज कंसीडर टू बी स्टोरेज ऑप्टिमाइज, सिंपल नेम, इसमें स्टोरेज ज्यादा होगा। और इस तरीके की मशीन हम डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज ऑप्टिमाइज होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टोर रहता है, उस तरीके के लिए इस तरीके की मशीन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एस्केलेटेड मशीन दैट इज GPU, if you have option of gaming and high graphical user interface, जिसमें ग्राफिक कार्ड का यूज होता है, तो एक्सीलेटेड कंप्यूट मशीन्स, EC2 मशीन इस तरीके के मशीन्स में यूज होती है। Okay. So that is the machines by their category. Okay. So as we already learned, general purpose, compute optimize, memory optimize, accelerate, and other options भी है इसमें। But for majorly we can understand to majorly we have to focus to understand in general purpose compute, memory, accelerated and storage machine. अब देखो जनरल पर मशीन में हम आते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल है। जनरल पर मशीन मोस्टली जो भी मशीन्स होती है उस मशीन इंस्टेंस टाइप विल बी स्टार्ट विथ M, देन कम द 8 अल्फाबेट दैट कंसीडर टू बी अ वर्जन। जैसा इससे पहले इसको अपग्रेड करते करते 8 वर्जन तक लाया है एंड इट्स कंटिन्यू टू बी अ जनरल। एंड द मीडियम लार्ज साइज, जैसे हमारे शर्ट टी शर्ट की साइज होती है वैसे ही इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं CPU के अंदर उस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, मीडियम लार्ज, एक्स लार्ज, एक्सएल लार्ज एंड ऑल द अदर नेम। तो फैंसी डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द AWS। फिर इसमें हर मशीन के अंदर कितना CPU यूज हो रहा है, कितना मेमोरी यूज हो रहा है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इंस्टेंस स्टोरेज क्या यूज कर रहा है इसके अंदर, उस मशीन के अंदर नेटवर्क बैंडविड्थ क्या है एंड Amazon EBS बैंडविड्थ क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो जनरल मशीन में इफ यू कैन सी इट्स बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सर्विसेज, ओके। बट इफ आई कैन गो टू द कंप्यूट ऑप्टिमाइज, सेम वे इसका नेमिंग कन्वेंशन मोस्टली स्टार्ट विद C, जनरेशन वही है। इसमें ये फोकस करेगा मैक्सिमम CPU पर, इसमें ये CPU जितना ज्यादा दे सके उतना CPU that will be creating, and the same way the memory optimization. So that is all are the basic concept of EC2 instance. In next session we can create a one EC2 instance, and by that EC2 instance we can just import one script there, and that script we can run from browser. Okay, so for today that's it. The theoretical section of AWS is completed.